Good evening and praise the Lord, my dear brothers and sisters. I salute you in the name of Lord Jesus Christ, who is our living Lord and God, Master, Savior, and He is fatherless, motherless, genealogyless. He has no end, no beginning, and He has become as the simile of Son of God. Hallelujah. No father, no mother, no genealogy at all. To whom we worship. Hallelujah, we thank you, Lord Jesus Christ. So, अजीजों, इससे पहले कि मैं कलाम पाक की सच्चाइयाँ आपके साथ मिलकर सीखूं, आज एक छोटा सा कोर्स आपके सामने गाऊंगा। सबसे पहले आओ सुला दियां गुड्डियां उड़ाइए रल मिल के, आओ सुला दियां गुड्डियां उड़ाइए रल मिल के, कंध तफरकियां दी गिराइए रल मिल के, आओ सुला दियां गुड्डियां उड़ाइए रल मिल के, कंध तफरकियां दी गिराइए रल मिल के। पाके पैरां विच सुला दियां जुत्तियां, रुसे पाई नू मनाइए पाके जफ्फियां। हालेलुया। रुसे पाई नू मिलाए जक पाके जफ्फियां, आओ सुला दियां गुड्डियां उड़ाइए रल मिल के। हालेलुया। ना बनी इस जहान वांगर प्यारियो, ना बनिए इस जहान वांगर प्यारियो, अकल नहीं पाक बनिए मसीदे वांगर प्यारियो, अकल नहीं पाक बनिए मसीदे वांगर प्यारियो, आओ सुला दियां गुड्डियां उड़ाइए रल मिल के, उड़ाइए रल मिल के। हालेलुया। गिरजे दे विच याद आए रुसे होए भाई दी, गिरजे दे विच याद आए रुसे होए भाई दी, छड्ड दिओ विखावे दी पार साई वी, पार साई वी, आओ सुला दियां गुड्डियां उड़ाइए रल मिल के, कंत फरकियां दी गिराइए रल मिल के। ते 600 साल लंघ गए ते फरकियां दियां नमाज़ां दे, छड्ड दिओ इस रियाकारी दियां फोकियां नमाज़ां दे, फोकियां नमाज़ां दे, आओ सुला दियां गुड्डियां उड़ाइए रल मिल के, उड़ाइए रल मिल के। हालेलुया। सलीबी हथ बन, सलीबी हथ चुक मंगदा एक सुला दी दुआ। हालेलुया। सलीबी हथ चुक मंगदा एक सुला दी दुआ, कंत कैथलिक ते प्रोटेस्टेंट भाई दी गिरा, कंत कैथलिक ते प्रोटेस्टेंट भाई दी गिरा, भाई दी गिरा, आओ सुला दियां गुड्डियां उड़ाइए रल मिल के, कंत फरकियां दी गिराइए रल मिल के, गिराइए रल मिल के। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, अब वक्त है कि हम कलाम पाक की तरफ तवज्जो करें। तो आज की तिलावत हम पढ़ेंगे खुदा के जिंदा कलाम से। अजीजों, मैं इंग्लिश में भी पढ़ूंगा और उर्दू जुबान में भी। मुकाशफा चैप्टर अजीजों 6 है, मुकाशफा बाब 6 है, और उसकी अजीजों 7वीं और 8वीं आयात मुकद्दसा में आपके सामने तिलावत किए देता हूं। कलाम पाक में यूं लिखा है अजीजों, और जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे जानदार को यह कहते सुना कि आ, और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक जर्द सा घोड़ा है,
اور اس کے سوار کا نام موت ہے، اور عالم ارواح اس کے پیچھے پیچھے ہے، اور ان کو چوتھائی زمین پر یہ اختیار دیا گیا کہ تلوار اور کال اور وبا زمین کے درندوں سے لوگوں کو ہلاک کریں۔ اور اسی کے ساتھ عزیزو انگلش ورژن ہے The book of Revelation chapter 6 verses 7 and 8. Fourth seal, widespread death on earth. When he opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth living creature saying, "Come and see." Come and see. So I looked, and behold, a pale horse, and the name of him who sat on it was Death. And Hades followed with him, and power was given to them over a fourth of the earth to kill with sword, with hunger, with death, and by the beast of the earth. This is the word of the Lord. یہ خداوند کا زندہ کلام ہے، اور کلیسیا مل کر کہہ سکتی ہے، اے خداوند یسو آپ کا شکر ہو۔ اے خداوند یسوع آپ کا شکر، آمین، اے خداوند یسوع آپ کا شکر ہو۔ آمین، آمین۔ پریز دا لارڈ عزیزو۔ آمین آمین آمین۔ عزیزو، زرد گھوڑا یہ کلام میں پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں، اور چونکہ یہ فیس بک پر عزیزو اس کو میں نے اس دن نہیں کیا تھا، آج میرے دل میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ فیس بک فیملی کو بھی یہ کلام ان تک بھی پہنچے، اور ہم نے جو سنا ہوا ہے جن بہن بھائیوں نے، ان کی بھی ریویژن ہو جائے گی، اور اس کلام میں سے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، خدا کا پاک روح ہمیں اپنے کلام میں سے کچھ اور نئی باتیں سکھاتا ہے۔ پیل ہارس زرد گھوڑا ہے، اور اس کا جو سوار ہے اس کا نام ہے موت۔ جو اس کے اوپر بیٹھا ہے وہ ہے موت، اور عالم ارواح اس کے پیچھے پیچھے۔ عالم ارواح یعنی جہنم، جہنم۔ موت اس گھوڑے پر سوار ہے، یعنی موت کون دیتا ہے؟ ابلیس ہے۔ یسوع مسیح اس لیے آیا کہ ہم زندگی پائیں۔ چور آتا ہے چرائے، مار ڈالے اور ہلاک کرے۔ ابلیس کو، شیطان کو چور بھی کہا گیا ہے عزیزو۔ مارتا ہے، ہلاک کرتا ہے۔ اور وہ کس طرح سے عزیزو اپنے یہ کام کرتا ہے؟ وہ لوگوں کو گناہ کی طرف رغبہ دیتا ہے عزیزو۔ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ گناہ کی مزدوری، اگر ہم گناہ کرتے ہیں، کرتے جاتے ہیں، تو گناہ کی مزدوری تو موت ہے عزیزو۔ یہ وہ موت ہے جس کو ہلاکت کہا گیا ہے۔ یہ وہ موت ہے جس کو ہلاکت کہا گیا عزیزو۔ اور جب گناہ میری اور آپ کی اگر زندگی میں ہے، تو پھر ہم عزیزو جہنم کے وارث ہیں، جس کو مکاشفہ 9 باب کے اندر اتھا گڑھا کہا گیا ہے۔ اتھا گڑھا جس کے جس کو اس کا جو بادشاہ ہے اس کا نام ہے موت۔ اس کو یونانی میں ایپلیون کہتے ہیں، اور عبرانی میں ابدون کہتے ہیں۔ اور یہ دو موت کے عزیز، ان کے یہ یونانی اور یہ ایک ہی بادشاہ ہے موت کا، لیکن یہاں پر عبرانی اور یونانی میں لکھنے کا مطلب کیا ہے؟ عبرانی عزیزو یہودیوں کو ریپریزنٹ کرتا ہے، اور یونانی جو ہے وہ غیر قوموں کے لیے لفظ ہے۔ اگرچہ کہ یونان ایک ملک بھی ہے، لیکن بائبل مقدس میں
गैर कौमों के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। रोमियो को नाम से कहा हुआ खातो उसके 3 बाब 29 आयत में लिखा हुआ है, क्या खुदा सिर्फ यहूदियों का ही खुदा है, इब्रानियों का ही खुदा है, सयूनियों का ही खुदा है? क्या वो हमारा नहीं है? क्योंकि हम तो अजीजों कौमियत के लिहाज से तो हम इसराइली नहीं हैं, हम तो गैर कौमों में से बुलाए गए हैं। तो उन दो जो नाम है एप्लियन और दूसरा नाम है अबदून, वो सथा घड़े पर बैठे हुए हैं, और इस घड़े को बॉटमलेस पिट भी कहा गया है। एक ऐसा घड़ा जिसकी कोई तय नहीं है, उसके अंदर जो जाता है वो गर्क हो जाता है। जहन्नम, गहरी तारीकी भी इसको कहा गया है। और हम इससे बच कैसे सकते हैं अजीजों? अगर मैंने और आपने इस कलाम पर अमल किया है तो तब अजीजों हम हेल के नहीं हेवन के वारिस हैं। हेल जहन्नम को जहर करता है और हेवन आसमान को जहर करता है, फिरदौस को जहर करता है जहां पर यीशु मौजूद है। उन्हें कहा मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, ताकि जहां पर मैं हूं तुम भी वहीं पर हो। इब्ने आदम फिरदौस का भी मालिक है, इब्ने आदम सबत का भी मालिक है, इब्ने आदम जमीन और आसमान का मालिक है, इब्ने आदम हर चीज पर कुदरत रखता है। हम उसका शुक्र करते हैं, उसके नाम को मुबारक कहते हैं। लेकिन हमने करना क्या है अजीजों? पहला ग्रंथियों 15वां बाब है और उसकी आप पढ़ सकते हैं 44, 45, 47 आयात मुकद्दसा के अंदर लिखा हुआ है। किताब मुकद्दस में जरूर है ये फानी जिस्म बका का जामा पहने और ये मरने वाला जिस्म हयात अबदी का जामा पहने। हयात अबदी का एक जामा है जिसको एवरलास्टिंग लाइफ, हमेशा की जिंदगी। हमेशा की जिंदगी ये है कि तुझ खुदा वाहिद और बरहक को, यानी यीशु मसीह को, जिसको तूने दुनिया में भेजा है, उसको वो माने। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह ने जहान से ऐसा प्यार किया। यीशु मसीह ही जिंदा खुदा और खुदावंद अजीजों, यीशु मसीह अल्फा और ओमेगा है, अव्वल और आखिर है, इब्तिदा और इंतहा, कि उसने अपने आप को सलीब पर फिदिया में दे दिया, आदमजात बनकर, बेटा बनकर के अजीजों, ज़बह की हो बर्रा, ये सारे उनके टाइटल हैं, ताकि जो कोई यीशु मसीह पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद, वो बरहक सच्चा खुदा, आसमान और जमीन का खुदा और खुदम, सच्चा खुदा और खुदम यीशु मसीह अजीजों, जिसका जिक्र आप यिर्मयाह 10 बाब उसकी 10वीं आयत में भी पढ़ सकते हैं। हालेलुया। जरूर है, जरूर का मतलब क्या है कि ये लाजमी है, जरूर है, खतना जरूर है। पुराने आदनामे में यहूदियों के लिए 8 दिन के बच्चों का नर बच्चों का खतना था अजीजों, लेकिन नए आदनामे में यह दिल का खतना है। नए आदनामे में यह दिल का खतना है। इसके लिए आप कुर्सियों चैप्टर अजीजों 2 और उसकी 8वीं आयत में देख सकते हैं। वहां पर कलाम पाक में लिखा हुआ है, खबरदार कोई शख्स तुमको उस फलसूफी और लाहसल फरेब से, जो कि इंसानों की दीनवी और नफसानी बातें हैं, तुम्हें शिकार ना कर ले, क्योंकि उलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है, जो अब यीशु मसीह में तुम्हें बचाती है। उसमें तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता। वो जो 8 दिन के नर बच्चे का वो हाथ से होता था, लेकिन ये वो खतना है अजीजों जो दिल का खतना है। रोमियो को उससे का वक़ात उसका 2 बाब उसकी 26-27 आयत में लिखा हुआ है। रोमियो अजीजों उसका 2 बाब 27 और 28 आयत में लिखा है, यहूदी वो नहीं है जो जाहिर का और खतना वो नहीं है जो जाहिर का। यहूदी वो जो दिल का है और खतना वो जो दिल का है। ऐसों की तारीफ आदमियों की तरफ से नहीं बल्कि खुदा बाप की तरफ से होती है। क्या तारीफ है अजीजों? जब हम पानी में जाते हैं और बाहर निकलते हैं तो आसमान से आवाज आती है, ये मेरा प्यारा बेटा है, इमेनो मेरा प्यारा बेटा है, जॉर्ज मेरा प्यारा बेटा है, शमीम मेरी प्यारी बेटी है, बाजी मरियम मेरी प्यारी बेटी है, तारक भाई मेरे प्यारा बेटा है।
بھائی ایمینول اور اس کا خاندان کے بیٹے وہ سب اس کے بیٹے بن جاتے ہیں اگر انہوں نے اس کلام پر عمل کیا ہے. اگر آپ میں سے جس نے بھی اس کلام پر عمل کیا، کیونکہ جتنوں نے اسے قبول کیا ہے، جو کوئی اس کلام کو قبول کرتا ہے اور اس کے مطابق چلنا شروع کرتا ہے، وہ اس کو اس کے فرزند ہونے کا حق بخشتا ہے. یسوع مسیح کے فرزند، اس کی اولاد، اس کے بیٹے، تاکہ ہم اس جیسے بن جائیں. ہاللیلویا. تو عزیزو، خداوند کا پاک روح یہ فرماتا ہے ضرور ہے کہ یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہنے اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہنے. اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہن چکے گا اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا، تو تب وہ قول پورا ہوگا، اے موت تیری فتح کہاں گئی، اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا. موت کا ڈنگ گناہ ہے اور گناہ کا زور شریعت ہے. اور جب شریعت کا زور بڑھ جاتا ہے تو پھر عزیزو آگے پھر جہنم ہی جہنم ہے. خداوند کا پاک روح ہمیں یہ سکھاتا ہے. اس طرح سے ہم جب ہمارا دل کا خطرہ ہو جائے گا، تب ہم عزیزو حقیقی اسرائیلی بن جائیں گے، روحانی اسرائیلی. اب ان کے لیے اور ہمارے لیے ایک ہی کلام ہے. کیا خدا صرف یہودیوں کا ہی خدا ہے؟ کیا ہمارا نہیں ہے؟ اس اتھا گڑھے پر جو فرشتہ موت کا بیٹھا ہے، وہ یونانی میں ابدون ہے اور عبرانی میں اپلیون ہے. عزیزو، یہ موت کا فرشتہ ہے، موت کا بادشاہ بھی ہے، اور یہ تھا گڑھا ہے، لیکن اس کے اندر کون جائے گا؟ آئیے اس کی حقیقت کو دیکھتے ہیں کتاب مقدس کے مطابق. غور سے سنیے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا. ہم اس کا شکر کرتے ہیں اور اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں، مبارک کہتے ہیں، مبارک کہتے ہیں اور مبارک کہتے ہیں. اس کا شکر ادا کرتے ہیں پاک کلام کے لیے، روح القدس کے لیے جو ہمارا استاد ہے اور وہ ہمیں سکھاتا ہے. ہاللیلویا. یونانی میں اس کے لیے لفظ ہیل کے لیے تاروش استعمال ہوا. عزیزو، انگلش میں اس کے لیے ہے باٹم لیس پٹ. عبرانی ابدون کا مطلب ہے ڈسٹرائر، تباہ کرنے والا. ابدون کا مطلب ہے تباہی. اپلیون کا مطلب ہے تباہ کرنے والا. اور یونانی میں اس ہیل کے لیے، جہنم کے لیے لفظ تارتوس استعمال ہوا ہے. اب عزیزو، مسیح نے صلیب پر جان دے کر کے موت اور عالم ارواح کی کنجیاں جو ان فرشتے کے پاس تھی، وہ اس نے چھین لی ہیں. ہاللیلویا. انہوں نے مکاشفہ پہلے باب میں فرمایا، میں مر گیا تھا اور زندہ ہوں، موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں، میرے کھولے ہوئے کو اب کوئی بند نہیں کر سکتا اور بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا ہے. وقت ہے کہ میں اور آپ اس کے کلام کو سمجھیں. یہ چوتھی مہر ہے. یہ جو عزیزو کتاب حیات ہے، وہ 7 مہروں سے سیل کی گئی ہے. 7 مہریں ہیں اس کے اوپر، اور حکمت اور مکاشفہ کی روح کے وسیلے سے ہم ان کو کھول سکتے ہیں، کیونکہ خدا کا پاک روح خدا کی تہ کی باتیں دریافت کر لیتا ہے. ہاللیلویا. اس کے لیے ہمیں روح القدس کی ضرورت ہے. اگر آپ میرے ساتھ یسایہ 11 چیپٹر کی سٹڈی کریں تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے خدا کے زندہ کلام کے اندر. ہاللیلویا. اور یسی کے تنے سے کونپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک بار آور شاخ پیدا ہوگی، اور خداوند یسوع مسیح کی روح اس پر ٹھہرے گی. پہلی جو مہر ہے وہ عزیزو، اس کو کھولنے کے لیے ہمیں یسوع مسیح کا روح چاہیے. اس کے بعد اس کو کہا گیا ہے حکمت کی روح، اسپرٹ آف وزڈم چاہیے. پھر تیسری ہے خرد کی روح، یعنی انڈرسٹینڈنگ کی روح. اس کلام کو سمجھنے کے لیے روح القدس کی ضرورت ہے. پھر مسرت کی روح ہے، یعنی کاؤنسلنگ کرنا، صلاح دینا، صلاح کاری کرنا. اور 5ویں روح ہے اسپرٹ آف پاور. اور 7ویں ہے معرفت کی روح. پاور کی روح،
नॉलेज की रूह और खुदावंद के खौफ की रूह, ये 7 रूहें हैं इस कलाम को समझने के लिए। और इनका सोर्स रूल कुद्दस है अजीजों, ये रूल कुद्दस के अंदर छुपी हुई है। जब आप इससे मुज़य्यन हो जाएंगे, इससे भर जाएंगे, तब अजीजों मैं और आप इस कलाम की पूरी सच्चाई को समझ सकते हैं, स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग के वसीले से और स्पिरिट ऑफ टीचिंग के वसीले से। उन्होंने कहा तुम मुझे खुदावंद और उस्ताद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूं। यह यूहन्ना 13:13 में लिखा हुआ अजीजों। खुदावंद का पाक रूह आज मुझे और आपको ये फजल देता है कि जब मैं और आप इस कलाम पर अमल करते हैं, तौबा करते हैं, अपने गुनाहों की मुआफी के लिए पानी का बपतिस्मा लेते हैं, और फिर रूह कुद्दस की बरकत इनाम में पा करके, जिसका निशान गैर जुबानें हैं, आदमियों की जुबानें हैं, फरिश्तों की जुबानें हैं, तरह तरह की जुबानें हैं, और इनके बहुत से हवाले हैं। आप किताब मुक़द्दस में से पढ़ सकते हैं। रसूलों के अमाल चैप्टर 2 उसकी पहली 4 आयत, रसूलों के अमाल चैप्टर 10 वर्सेस 44 टू एंड ऑफ द चैप्टर, रसूलों के अमाल चैप्टर 19 और उसकी पहली 7 आयत, पहला ग्रंथियों 12 बाब के अंदर रूह कुद्दस की 9 नेमतों का जिक्र है, और वहां पर लिखा है कि रूह के बगैर हम उसे खुदावंद भी नहीं कह सकते। और फिर पहला ग्रंथियों 13वां बाब उसकी पहली 2 आयत में लिखा है, अगर मैं आदमी और फरिश्तों की जुबानें बोलूं। और फिर पहला ग्रंथियों 14 बाब के अंदर 15 दफा लिखा हुआ अजीजों। मार्कस 16:17 में लिखा हुआ अजीजों। यशायाह चैप्टर 29 और उसके 12 आयत के अंदर लिखा हुआ है। और फिर डैनियल नबी के सीफा के अंदर जो कुछ वो नविश्ता लिखा गया था, उसका तर्जमा भी किया रूह कुद्दस ने। हालेलुया, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। अब मौत का हम पर कोई इख्तियार नहीं है। जब हम गुनाह हमारी जिंदगी में से निकल गया, तो मौत जिसका ताल्लुक जहन्नम से है, अब मौत को हमने खुद मौत दी है, और हम अजीजों फिरदौस के मालिक बन चुके हैं, जन्नत के मालिक बन चुके हैं, अदन के मालिक बन चुके हैं। हालेलुया, हमारी दुआ है कि जो हेवन है वो भर जाए, और हेल जो है वो खाली रहे, जहन्नम खाली रहे, अथा गड़ा खाली रहे, उसमें कोई ना जाए, गहरी तारीकी से हम दूर रहें, और हम सब इस कलाम पर अमल करने के वसीला से हम जर्द घोड़े पर नहीं बल्कि सफेद घोड़े पर बैठे, जो फातेह है। आपके हाथ में एक कमान होगी। आपने इब्लीस को फतह किया, आपने उसकी कुव्वतों को शिकस्त दी, आपने उसकी मर्जी को पूरा नहीं किया, और सफेद घोड़े पर बैठ करके आप सीधे नए यरूशलेम के अंदर जाएंगे। खुदावंद का पाक रूह मुझे और आपको आज के कलाम के वसीले से कसरत से बरकत बख्शे। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हाँ मेरे साथ अजीजों, ओ ग्लोरी टू आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। हम सब सफेद घोड़े पर बैठेंगे अजीजों, कमान हमारे हाथ में होगी, सफेद हमने लिबास पहना होगा, और फतह करते हुए इस जमीन पर जहां जहां पर भी रुकावट आएगी उसको चीरते हुए हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि रूह कुद्दस की तेज तलवार हमारे पास है, रूह कुद्दस की कमान हमारे पास है, रूह कुद्दस हमारे पांव के अंदर जूतों के तरह से हमारे अंदर काम कर रहा है। हम उसका शुक्र अदा करते और सारा जलाल उसको देते हैं। हालेलुया, रूह कुद्दस खुदा मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ। ये बातें आपके पाक रूह ने मुझे सिखाई, और आज एक बार फिर खुदावंद हमने फेसबुक फैमिली के साथ सीखी है। ये कलाम जहां जहां तक जाए, लोग इसको सुने और इससे बरकत पाएं और तेरे नाम को जलाल दें। और मेरे लिए दुआ करते रहें कि खुदा मुझ पर हिकमत और मुकाशफा की रूह के वसीला से अपने कलाम के गहरे भेद सिखाता रहे। और आपके कलाम में लिखा है, आपने फरमाया है, अगर तू मांगे तो मैं कौम है तेरी मिरास के लिए, और जमीन के इंतहाई हिस्से तुझे बख्श डालूं। मैं कलाम के गहरे गहरे मुकाशफे तुझ पर ज़ाहिर करूं, मैं खुदा की तह की बातें तुझ पर अयां करूंगा। हालेलुया, मैं आपका शुक्र अदा करता हूं अरूल कुद्दस के लिए जो हमारा उस्ताद है। थैंक यू जीसस। रूह पाक आप बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं और बढ़ते ही जाएं, और मैं कम होता जाऊं, कम होता जाऊं, कम होता जाऊं और कम होता जाऊं, यीशु मसीह के नाम से जो हमारा जिंदा खुदा और खुदावंद है। आमीन, 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 हालेलुया। फेसबुक फैमिली मैं आप सबको सलामत करता हूं। अगर आपका कोई भी कमेंट हो, अगर आप कोई पूछना चाहें कलाम पाक में से, खुदावंद का पाक रूह आपको बड़ी सफाई के साथ उसकी तय की बातें बता सकता है अजीजों। और अगर कोई बीमार या कमजोर है, आप अपना मैसेज लिख दीजिए, खुदा उसके लिए दुआ करेंगे। खुदावंद का पाक रूह आपको जिस्मानी शिफा भी बख्शेगा, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।